Good morning, my dear students. Welcome to e-learning class of Sacred Hearts. This is your business studies lecture, and in this lecture, I am going to explain you some topic of chapter 4, that is business services. From my last lecture, that was lecture 16, and this one is lecture 17. From 16th lecture, I have started chapter 4, business services. I have covered some topics of chapter 4, business services, in the last lecture. Meaning of business services I have covered over there, then nature of business services I have covered over there, and then type difference between goods and services, it was there. Now from this lecture I am going to cover some more topics of this chapter. These topics to be covered today in the lecture are: number 1, various categories of business services; number 2, banking services and types of account; number 3, some important services provided by the bank. These three topics I am covering in this lecture. Now come to the first topic, that is various categories of business services. There are different types of business services. Number 1, banking; number 2, insurance; number 3, postal and telecom services; number 4, warehousing services; number 5, transportation. These are the various categories of business services. What is business service? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था बेटा. Business services, all those facilities, all those services which are facilitating trade to run smoothly, it is known as business services. Business services के examples हैं बेटा ये banking, insurance, postal and telecom services, warehousing services, transportation, ये सब आपके business services के example हैं. Business services facilitate करती है trade को. इस service is an outcome of economic activity as a result of interaction between a service provider and the customer. Service एक outcome है economic activity का. It is a result of interaction between a service provider and the customer. Services provide satisfaction of want. Services are intangible. I have explained all those things in my last lecture. Now from this lecture I am covering the topic various categories of business services. See number 1 category, that is banking services. First category of business services are banking services. What is banking services? Banking services क्या है बेटा? What is a bank? What is a banking services? All those financial institution which main aim या main function is to accept deposits and lend money, but it offers many other services to attract customer and compete with others. It is known as banking services. Each and every business, big or small, depends on services provided by banks. Bank provide funds for business operation and survival. Bank is an institution which attract money on deposits for the purpose of being lent to industry or trade. A bank lend what it borrows from others. Bank is buyer and seller of money. A bank on a margin of profit by lending money which it borrows. देखो बैंक क्या है? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अट्रैक्ट करता है मनी ऑन डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड. बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अट्रैक्ट करता है मनी ऑन डिपॉजिट्स, और उन डिपॉजिट्स को वो लेंड करता है टू इंडस्ट्री और ट्रेड. बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर, और बैंकर सिर्फ मनी लेंडर नहीं है. बैंक लेंड व्हाट इट बोरोज फ्रॉम अदर्स. बैंक को जो भी अदर्स दूसरों से वो बोरो करते हैं उसको वो लेंड कर देते हैं. अ बैंक इज़ बायर एंड सेलर ऑफ मनी. बैंक जो है मनी का बायर और सेलर है. अ बैंक अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोज. और बैंक जो को उसमें क्या मिलता है? व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ बैंक? बैंक इज़ अर्निंग अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट व्हाट इट बोरोज. ठीक है बेटा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट. Bank offered various types of account to meet very need of its prospective customers. बैंक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन करता आता है ताकि वो अपने कस्टमर्स की डिफरेंट नीड्स को पूरा कर सके. ठीक है. बैंक इज़ प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट थ्रू विच दे कैन cover the need of customers. There are different categories of banks and each category of bank offer different types of account. Different categories of bank है और each category of bank जो है different type of account को offer कर रहा है to the customers. ठीक है. However, some of the common type of bank account are, कुछ common type of bank account I am explaining here. Some common type of bank account which are as follows. Number 1, saving deposit account.
सबसे फर्स्ट जो है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट आर यूजुअली ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जो एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। और कोई भी पर्सन जो है अपना सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन इट। ही कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल। और एक बार उसका अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो उसमें से कभी भी मनी को विड्रॉल कर सकता है, और वेन एवर ही है सरप्लस तो वो उसमें जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। डिपॉजिटर इज इशूड अ चेक बुक एंड पासबुक। और डिपॉजिटर को क्या मिल जाता है? एक चेकबुक और पासबुक मिल जाती है जिसके थ्रू वो अपनी डीलिंग करता है। ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। और जो भी वो विड्रॉन कर रहा है, चाहे जो भी वो डिपॉजिट कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड किस में मेंटेन होता है? पासबुक में मेंटेन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर दैन फिक्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है दैन फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि वेन एवर वी वॉन्ट, एनी टाइम वी वॉन्ट, एनी अमाउंट ऑफ मनी वी वॉन्ट, इफ वी कैन डिपॉजिट और वी कैन विड्रॉल in our bank account as per the limit। ठीक है बेटा। तो सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट आर यूजुअली ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल ऑपरेट करते हैं। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको डिपॉजिटर को एक पासबुक और चेकबुक इशू हो जाती है जिसके थ्रू डीलिंग करता है, और वो सारी डीलिंग जो रिकॉर्ड होती है इन द पासबुक। ठीक है। नाउ सी दिस वन इज़ योर फर्स्ट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। नाउ सी सेकेंड, दैट इज़ करेंट डिपॉजिट अकाउंट। सेकेंड इज करेंट डिपॉजिट अकाउंट और करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट आर ऑपरेटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। करेंट अकाउंट जनरली कौन ऑपरेट करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। करेंट अकाउंट आर ओपन बाय बिजनेसमैन। करेंट अकाउंट किसके थ्रू ओपन होता है? बिजनेसमैन के थ्रू ओपन होता है। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। और इसमें जो अकाउंट होल्डर है वो कभी भी डिपॉजिट कर सकता है मनी को, विड्रॉ कर सकता है whenever he requires. This type of account facilitate businessmen to deposit or withdraw money any number of times. यूजुअली बिजनेस हाउस कंडक्ट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू करेंट अकाउंट ओनली। जनरली जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, क्योंकि उनमें डेली के डेली डीलिंग होती है, सेल होता है तो सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, तो दे नीड मनी, डीलिंग कराते हैं डेली। तो जो डेली बेसिस पे डीलिंग करा रहे हैं तो उनका जो भी अकाउंट ओपन होता है इट इज़ कॉल्ड करेंट डिपॉजिट अकाउंट। और जब आप उसमें एक स्मॉल सम ऑफ मनी, अपने सरप्लस मनी को सेव कर रहे हैं, उसमें डेली की डीलिंग नहीं चल रही है, इट इज़ कॉल्ड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेंट डिपॉजिट अकाउंट में विड्रॉल आप कितने टाइम भी कर सकते हैं। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक, और ये विड्रॉल हमेशा किसके थ्रू मेड होते हैं? चेक के थ्रू मेड होते हैं। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटेट्स अवेलेबल इन दिस अकाउंट। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिमिट और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी अवेलेबल है इन दिस अकाउंट। एंड नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पेड नहीं होता है, जबकि सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पेड होता है। ठीक है। देन रादर सम सर्विसेज चार्जेस चार्ज बाय द बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। इसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं होता है, बट उसके बदले में आपको कुछ सर्विसेज बैंक चार्ज करती है ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। नाउ सी नंबर 3, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग मतलब which can be recovered. A depositor can deposit money every month for a fixed period. The amount together with interest is repaid on maturity. Recurring deposit account एक और फैसिलिटी है जिसमें कोई भी डिपॉजिटर, it is a type of account which allow the account holder to save fixed amount on regular basis for a fixed period of time. Recurring deposit account वो अकाउंट है जिसको आपने एक बार ओपन करा लिया तो उसमें आप अपना कुछ सेविंग को, फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट करें फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और जब वो फिक्स टाइम पीरियड पूरा होगा देन दे विल रिटर्न यू दैट मनी in your account with some rate of interest which is specified in this recurring deposit account. इसमें आप फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल आपने कहते 1000 रुपीज़ का आपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करा दिया, तो एवरी मंथ यू हैव टू डिपॉजिट 1000 रुपीज़। आपने 1 ईयर का लिया है रेकरिंग डिपॉजिट, तो आपको 1 ईयर तक 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, और आफ्टर 12 मंथ्स आपको विद इंटरेस्ट ये रेकरिंग अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग। ये आपकी एक तरीके का सेविंग है, वो सेविंग है जो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फिक्स अमाउंट नहीं है सबमिट करने के लिए, तो आप रेकरिंग के थ्रू पर मंथ की अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। और अकाउंट होल्डर कैन टेक लोन अगेंस्ट रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट। और अकाउंट होल्डर के पास ये भी बेनिफिट है कि वो इस रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन भी ले सकता है व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी नंबर 4, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम FD भी बोलते हैं।
Fixed deposit account is also known as FD. A fixed deposit is repayable after the expiry of the specified period. Fixed deposit account is a type of account in which a fixed amount of money is deposited for a fixed period at a fixed rate of interest. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो टाइप ऑफ अकाउंट है जिसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट होती है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. यूजुअली इंडिविजुअल विद सरप्लस मनी प्रेफर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वन टाइम डिपॉजिट अकाउंट है. इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है. उस फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप मनी को डिपॉजिट करते हैं और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड और ऑन एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेबल टू द कस्टमर. जो अमाउंट डिपॉजिट करी है उस विद इंटरेस्ट उसको पेबल हो जाती है. द टाइम पीरियड फॉर अ फिक्स डिपॉजिट कैन रेंज फ्रॉम 7 days to 10 years. जो फिक्स डिपॉजिट का टाइम पीरियड है वो आपका 7 days से 10 years तक है. यूजुअली फिक्स डिपॉजिट आर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 2 year, 3 years. फिक्स डिपॉजिट जनरली हम 1 year, 2 year, 3 years के लिए कराते हैं. फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पेड होता है वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिपॉजिट. कितने पीरियड के लिए आप डिपॉजिट करा रहे हैं, किस अमाउंट से डिपॉजिट करा रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. now see the next one, that is multiple option deposit account. इसको हम MOD भी कहते हैं. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज MOD. एज द नेम सजेस्ट, आप इस नेम से समझ रहे होंगे, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस टू द डिपॉजिटर. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर को. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more अकाउंट. ये 2 और मोर अकाउंट का कॉम्बिनेशन है. इट में लिंक सेविंग अकाउंट विद द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद करेंट अकाउंट. ये सेविंग अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लिंक कर सकता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को करेंट अकाउंट के साथ लिंक कर सकता है. इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बोथ अकाउंट. इसमें आपका जो अकाउंट होल्डर है वो दोनों का बेनिफिट उठाता है और बोथ अकाउंट का बेनिफिट उठाता है. दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस टू द डिपॉजिटर. ठीक है. तो ये कॉम्बिनेशन कौन से दोनों अकाउंट का बेनिफिट उठा रहा है? वन इज सेविंग अकाउंट एंड अदर वन इज करेंट अकाउंट. इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करेंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट. ये वो अकाउंट है जो मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट मतलब वन अकाउंट है ये. इसमें जो आपने फिक्स डिपॉजिट करा हुआ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है और जो आपने करेंट अकाउंट के तरह इसको डील कर रहे हैं, जो अमाउंट आप सेव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, वो आपके लिए लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल होती है. मतलब जब भी चाहें आप उस मनी को विड्रॉल कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ. इफ़ द सेविंग अकाउंट इज़ लिंक्ड विद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट को हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लिंक करते हैं, देन एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ मिनिमम बैलेंस फ्रॉम द सेविंग अकाउंट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. और इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड पेमेंट कैन बी मेड बाय ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू सेविंग अकाउंट. देखो ये कॉम्बिनेशन है 2 अकाउंट का. तो इसमें क्या होता है, जब आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को करेंट अकाउंट से लिंक कर दिया है या सेविंग अकाउंट से लिंक कर दिया है, तो जो भी अमाउंट आपका जो है सेविंग अकाउंट में एक्सेस है उसको वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट करते रहते हैं. फिक्स्ड उसको ऑटोमेटिकली वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करते रहते हैं. और जब भी आपको इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, नहीं है आपके पास फंड, तो आप इसके थ्रू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू या मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू सेविंग अकाउंट. और जब भी आपको ज़रूरत है आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से अमाउंट को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं. एक्सेस मनी है तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देता है ये अकाउंट. और जब आपको डेफिशिएंसी है, जिससे में आपको रिक्वायरमेंट है फ़ंड की, उस समय ये जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है उसको कन्वर्ट कर देता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में और फिर आप उसके थ्रू मनी को पे कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. ये ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफ़र करता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उस इन द सेविंग अकाउंट. और ये जो क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि जो है हम अपनी बचत को देख सकें एंड सो दैट वी कैन हैव अ मल्टीपल ऑप्शन इन अ वन टाइम. ठीक है. तो ये आपके जो है मेनली 5 टाइप्स ऑफ वो थे, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं. वन इज़ सेविंग अकाउंट, देन करेंट अकाउंट, देन आपका जो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट फैसिलिटीज, सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. कुछ इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज भी हैं जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है. द बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज मेन फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड मनी, बट इट ऑफर्स मैनी अदर सर्विसेज टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड कम्पीट विद अदर बैंक्स. बैंक क्या है, तुम्हारा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन एम क्या है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड मनी. लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को फ्रॉम
अदर बैंक सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ नंबर 1 बैंक ड्राफ्ट. Number 1 is a bank draft. Some important services provided by the bank, that is number 1 bank draft. Bank draft is an instrument issued by a bank. Bank draft क्या है बेटा? Bank draft is an instrument issued by a bank for transfer of specified fund to a specified individual or a company. Bank draft वो institution है, वो instrument है जो issued करता है बैंक for transfer of specific fund to a specific individual. किसी भी specific individual के specific fund को transfer करने के लिए bank draft use होता है. This is a check drawn by one bank against funds deposited into its account at another bank. ये वो चेक है जो वन बैंक इशू कर रहा है दूसरे बैंक को जिसमें उसका अकाउंट ओपन है. ऑथराइज्ड द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल हुज नेम इज़ रिटन ऑन द ड्राफ्ट. एक कस्टमर अपने बैंक से बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दूसरे कस्टमर को दूसरे बैंक में पेमेंट कर सकता है. बैंक ड्राफ्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक कस्टमर के अकाउंट से दूसरा पर्सन जिसको उसने बैंक ड्राफ्ट इशू करा है वो अमाउंट को विड्रॉन करा सकता है, या बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर जिसके नेम से उसने बैंक ड्राफ्ट इशू करा हुआ है उसको वो मनी अवेलेबल करा सकता है. ठीक है, तो बैंक के इट इज़ अ काइंड ऑफ चेक ही, एक तरीके का चेक ही है जो रिटन बाय द बैंक ऑन कस्टमर बिहाफ, जिसको कस्टमर के बिहाफ पे बैंक लिखती है. इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी लिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू आप मनी को लिमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. नाउ सी सेकेंड वन, दैट इज़ बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर. Banker's check is an instrument issued by a bank to pay a specified amount to a specified individual or a company. बैंकर चेक्स को हम पे ऑर्डर भी कहते हैं. ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैंक इशू करती है टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और अ कंपनी, जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट को किसी स्पेसिफाइड इंडिविजुअल को या कंपनी को पे कर सकते हैं. इट इज़ पेएबल विद इन सेम सिटी और टाउन, और ये बैंकर चेक आपका एक सिटी और टाउन में पेएबल हो सकता है. टू गेट अ पे ऑर्डर कस्टमर पे मनी टू द बैंक एंड द बैंक इन रिटर्न इशूज़ अ चेक. और अगर आपको ये पे ऑर्डर की फैसिलिटीज़ को अवेल करना है तो पहले कस्टमर पे करता है मनी को बैंक में, और उसके बदले में उसके रिटर्न में बैंक उनको इशू कर देती है चेक फॉर द सेम अमाउंट. जितनी अमाउंट कस्टमर ने डिपॉजिट करी है उसके बदले में उतनी अमाउंट का चेक उसको इशू हो जाता है टू बी पेबल ऑन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल. और उस चेक पे अगर आपने नेम लिख दिया है तो आपका वो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल को चेक पे हो जाता है. और इस पर और कंपनी एंड इंस्ट्रक्टेड बाय द कस्टमर, जैसे कस्टमर इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके बिहाफ पे बैंक उस चेक के थ्रू उस मनी को स्पेसिफाइड कस्टमर को पे कर देता है. इज़ इट क्लियर? तो बैंकर चेक क्या वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप स्पेसिफाइड अमाउंट को किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर सकते हैं. नाउ सी द थर्ड वन, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट एंड कैश ओवरड्राफ्ट. द थर्ड वन इज़ ओवरड्राफ्ट एंड फोर्थ वन इज़ कैश क्रेडिट. ओवरड्राफ्ट वर्ड से समझ लीजिए. ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस. In this arrangement, a customer having current account is allowed to withdraw more than the balance in his account. इस arrangement के थ्रू एक कस्टमर जिसका उस बैंक में अकाउंट है वो अपने बैंक के अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा मनी को विड्रॉल कर सकता है. उसके पास ये फैसिलिटी होती है थ्रू बैंक ड्राफ्ट कि वो जो मनी उसके अकाउंट में उससे ज़्यादा की अमाउंट की मनी को विड्रॉल कर ले फ्रॉम द बैंक मोर देन द हिज बैलेंस इन द बैंक अप टू एट. लेकिन इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल अगेंस्ट अ सिक्योरिटी ऑन पर्सनल गारंटी. और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको तभी ये थोड़ी है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए, 50,000 रुपीज़ इज देयर इन योर अकाउंट और आपने जो है 10 लाख रुपीज़ विड्रॉन कर लिया. ऐसा नहीं है. विड्रॉन की जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं इट इज़ अप टू द लिमिट, और इस फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए यू हैव टू पुट आ सिक्योरिटी और पर्सनल गारंटी आपको लेनी होती है, तभी आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल आ फर्म में हैव अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹20 लाख. किसी फर्म के पास फर्म का फिक्स डिपॉजिट है 20 लाख का बैंक में, तो बैंक में प्रोवाइड द फर्म दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू मैक्सिमम ऑफ 18 लाख. तो बैंक क्या करती है 90% की अमाउंट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है. आप मनी को विड्रॉन कर लीजिए. फिक्स डिपॉजिट को आपने रख दिया, आपकी फिक्स डिपॉजिट भी वैसे ही चल रहा है, उसको आपको ब्रेक कराने की ज़रूरत नहीं है, और आप मोर अमाउंट की मनी को विड्रॉन कर लीजिए बैंक से. और फिर धीरे धीरे इन द ईजी इंस्टॉलमेंट यू कैन पे दैट मनी. ठीक है, तो विड्रॉन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तभी मिलती है व्हेन यू आर कीपिंग एनी सिक्योरिटी इन द बैंक, और उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अप टू 90% ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है. नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट इज़ अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन
वेयर बोरोवर कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक विद इन द सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट। देखो कैश क्रेडिट क्या होता है, ये जनरली जो कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज़ है ये शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटीज़ है विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम जिसका रिपेमेंट करना होता है। ये वो फैसिलिटीज़ है जिसमें बोरोवर को ये अलाउड होता है कि विदड्रॉ कर ले अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट हैज़ टू बी रिपेड विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, आपने जो भी सिक्योरिटीज़ रखी हैं बैंक में उसके अगेंस्ट में आप मनी को स्पेसिफाइड लिमिट तक विदड्रॉन कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिपे दैट मनी विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। ठीक है। द सेंक्शन अमाउंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट करंट एसेट्स, और ये जो भी सेंक्शन अमाउंट है ये करंट एसेट्स के अगेंस्ट ही सिक्योर्ड होती है। दैट इज करंट एसेट्स कौन कौन सी बेटा, डेटर्स हैं, स्टॉक है, इसके अगेंस्ट में ही ये आपकी सेंक्शन अमाउंट सिक्योर्ड होती है एंड इट हैज़ टू बी रिपेड विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। नाउ सी नेक्स्ट, दैट इज शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन वो लोन्स हैं, अ लोन एज अ लमसम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। लोन वो है जो आप बैंक से एक तरीके से एडवांस ले रहे हैं और उसको जितने से स्पेसिफाइड पीरियड के ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी पर आपको वो लोन रिटर्न करना होता है। वो लमसम अमाउंट है जो एडवांस में हम बैंक से लेते हैं। इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये लोन जो है आपका सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। द लोन मे बी पेड बैक बाय द बोरोवर इन इंस्टॉलमेंट, और इस लोन को आप ईजी इंस्टॉलमेंट में पेड बैक कर सकते हैं। और जितनी लिमिट के लिए आपने लोन लिया है, जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है उस स्पेसिफाइड ईयर तक आपको उस लोन का रिपेमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन, हमने 20 ईयर्स के लिए हाउसिंग लोन ले लिया, वी आर गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ हाउस थ्रू दिस लोन, और उसके बाद हम धीरे धीरे इजी इंस्टॉलमेंट में उस लोन को रिपे कर रहे हैं। बट जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमें उस लोन को रिपे करना पड़ता है। ये लोन सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। इज़ इट क्लियर बेटा? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क इन जूम डाउट क्लास, आप पूछिए वहाँ पे, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए और उसको अपलोड करिए आईडीज़ पे। हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।